We start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Dear student front follower, in today's session, you people will learn what is style, what is stylistic, and what is the function of stylistician. Being a stylistician, what you need to do, and a person who's a stylistician, how he studies uh, you know literary genre, and after that how he describe language. As you know, stylistic is also a branch of applied linguistic, in which you study text, whether it is in a spoken form or in written form. You study what kind of language this person is using. You can study at morphological level, graphological level, phonological level, and even syntactic level. You can study on various level. There is a piece of text, you apply you apply the knowledge of linguistic, and after applying the knowledge of linguistic, applied linguistic, you will study his style, how he's speaking, what kind of lexical words he's using in a way to speak, in a way to write. So you can study particular level of the person, where he's speaking and how he's speaking, and how he is arranging text, forming text, tone of the speaker and writers, how he's selecting lexical word, functional word. And you can study at various levels. The levels are very prominent: graphological level, morphological level, even narrational level. Even you can study at a syntactic level, grammatical level. So these are the levels you can apply while analyzing the text. So you'll be a stylistician, and being a stylistician, you have to analyze the text at various level. But you are not going to give your own judgment. You will give judgment according to the text. You will describe as you see the text. You will describe as the person speaking. You will describe as you see the text. This is a scientific study. This is totally objective study about being a stylistician, because it's a branch of applied linguistic. There is a difference between criticism and stylistics. स्टाइलिस्टिक और क्रिटिसिज्म को लोग क्या करते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और स्टाइलिस्टिक को कहते हैं ये एक ही फील्ड है, बट देयर इज अ डिफरेंस. क्रिटिसिज्म में तो आप अपनी दे सकते हैं ना जजमेंट, आप अपनी भी दे सकते हैं कि आप क्या कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको जजमेंट देते हो उस लिटरेरी टेक्स्ट की. बट हियर you have to describe by applying the knowledge of linguistic डिवाइसेस को यूज करके आपने उसको ऐसे ही डिस्क्राइब कर देना लैंग्वेज को. इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट को, किसी के स्पोकन वर्ड को, उसे कहते हैं स्टाइलिस्टिक्स. तो स्टाइलिस्टिक की डेफिनेशन, व्हाट इज स्टाइलिस्टिक? वेरी if you study this, you will be very intellectual. You will able to analyze text. You will see, once you study stylistic, you will be able how people are persuading other. You are seeing various ads, you are seeing newspaper headline, you are seeing some brochures, you are studying some even newspaper. You will automatically analyze, because being having the knowledge of a stylistic, you are easily able to analyze text, easily analyze from headline, what kind of language person is speaking, what kind of language he is using, whether he want to pursue, whether he wants to hide identity, or he want to give explicit discourse, or he wants to give implicit discourse, covert discourse, avert discourse. You will easily analyze. कवर्ट और अवर्ट इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा कि ये इसका डिस्कोर्स क्या है, ये कहाँ से बात कर रहा है, इसके लेक्सिकल वर्ड क्या है, लेक्सिकोलॉजी क्या है, इसकी लेक्सिकोलॉजी की भी स्टडी इसके अंदर आ जाती है. तो व्हाट इज स्टाइलिस्टिक? इन फ्रंट ऑफ you can see definition is right over here. क्या डेफिनेशन है? What is stylistic is the study and interpretations of text from the linguistic perspective. As disciplining as a discipline, it links literary criticism and linguistic. कुछ लोग इसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म से मिलाते हैं,
but there is a difference between literary criticism and stylistic. In stylistic, you will utilize devices from the linguistic. You will apply the knowledge of the linguistic and you will apply on the text, and you will describe as you see the things. So it is a totally objective study, scientific study. Stylistic is a branch of applied linguistic. स्टाइलिस्टिक क्या है? ब्रांच है अप्लाइड लिंग्विस्टिक की, और इसमें क्या होता है कि आप टेक्स्ट को लेते हो और टेक्स्ट को स्टडी करते हो, टेक्स्ट को ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब कर देते हो कि उस बंदे ने क्या, अगर वो अपनी टेक्स्ट के अंदर क्या इस्तेमाल कर रहा है, नरेशनल लेवल पे उसको कर सकते हो। यानी डिफरेंट लेवल्स होते हैं इसके अंदर एनालिसिस के। क्या होते हैं? लेवल्स। नरेशनल लेवल पे, फोनोलॉजिकल लेवल पे, कि उसने फोनोलॉजिकल कौन कौन सी चीजें उसके अंदर यूज की हैं। उसके बाद आप इसको ग्रामेटिकल लेवल पे, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे, लेक्सिकल लेवल पे, ये सारे लेवल्स हैं जिसके इन लेवल्स को अपने माइंड में रखते हुए टेक्स्ट को आप एनालाइज करोगे, अगले की स्पीच को एनालाइज करोगे फोनोलॉजिकल लेवल पे, ग्राफोलॉजिकल लेवल पे। ग्राफोलॉजिकल लेवल मैंने लिख दिया है, ग्राफोलॉजिकल लेवल भी एक है। ग्राफोलॉजिकल लेवल क्या होता है? रिटन सिस्टम। मॉर्फोलॉजिकल लेवल, ग्राफोलॉजिकल लेवल, सिंटैक्टिक लेवल, सिंटैक्टिकल लेवल, कि इसको अरेंजमेंट कैसे करता है चीजों को ये। तो ये सारे आपको प्रोवाइड कौन करता है? स्टाइलिस्टिक। अप्लाइड लिंग्विस्टिक की ये ब्रांच है, नाम है स्टाइलिस्टिक। So what's the definitions? First of all, let me teach you what is style. You know, Fozia, Amber, me, and somebody else, if we are over here, we are having our own way of delivering speech. I deliver other way, you deliver other way, and Amber speaks another way. So we have our own style of delivering message, saying something, portraying something, narrating something, describing something, reflecting something. So we have our own style, and we arrange certain word, arrange them into order, and then we deliver. So I use different lexical words, functional word, and certain tags in a way to speak. You select a different word and somebody select different word, as fingerprint of another person does not match. Same way, tone, message, style, speaking, and manner of speaking is totally different. So this subject has come into being due to keeping all these things in mind. ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के ये सब्जेक्ट जो है वजूद में आया है कि जब एक इंसान का दूसरे इंसान से बोलने का अंदाज नहीं मिलता, सिलेक्टेड वर्ड्स उसके और होते हैं। मतलब मैं बोलता हूं तो मेरे वर्ड्स ही और हैं, मैं लाख दफा किसी को कॉपी करने की कोशिश करूं लेकिन वो स्टाइल मेरा वही रहेगा। क्यों फौजिया? फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, इंसान का फेस नहीं मिलता, इंसान का बोलने का अंदाज, बैठने उठने का, किसी इंसान के जो करने का स्पेसिफिक अंदाज से करने का अंदाज है उसको स्टाइल कहते हैं। कोई काम भी करने का, मतलब हाउ आई कुक, हाउ आई टीच, हाउ आई रीड, हाउ आई अरेंज माई बुक्स, हाउ आई wear something, how I change myself. So these are my style. Way of going somewhere else, way of eating something, way of wearing something, way of teaching, way of doing job. तो जो भी हम कर रहे हैं वो क्या है? एक हमारा स्पेसिफिक स्टाइल है। एक क्रिटिक कहते हैं कि स्टाइल इज अ मैन हिमसेल्फ। स्टाइल तो इंसान खुद होता है। अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो उसका स्टाइल ही आपको बता देता है कि वो क्या है। So style is a man himself. Stylistic is a method of teaching. Stylistic क्या है? एक मेथड है, मेथड ऑफ टेक्सुअल इंटरप्रिटेशंस। इसके जरिए आप किसी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। किसकी तरह? ऑब्जेक्टिव वे के साथ, जैसा वो है उसको वैसा डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप क्या हो? स्टाइलिस्टिशियन हो।
इन विच प्राइमरी प्लेस इज असाइंड टू लैंग्वेज, जिसमें प्राइमरी प्लेस क्या है, लैंग्वेज को हासिल है स्टाइलिस्टिक में। ये क्या सिंपसन ने ये 2004 में कहा। स्टाइलिस्टिक समटाइम कॉल्ड द लिंगुओ स्टाइलिस्टिक्स, अ ब्रांच ऑफ जर्नल लिंग्विस्टिक दैट डील विद, किसके साथ डील करता है, इन्वेस्टिगेशन और इन्वेंट्री ऑफ द स्पेशल लैंग्वेज। अब यहां तक समझ आया, एक होता है स्टाइल, एक होता है स्टाइलिस्टिक। अब दोनों में, इन दोनों का फर्क समझ आया तो फिर आगे बात समझ आएगी। पहले इसको अच्छी तरह समझ लें। मैंने बताया कि स्टाइल किसी इंसान के XYZ के किसी के काम करने का अंदाज है, कपड़े पहनने का अंदाज हो सकता है, खाने पीने का अंदाज हो सकता है, अरेंजमेंट का अंदाज हो सकता है, किताबों को वो कैसे अरेंज करता है, पढ़ाता कैसे है, डिलीवर कैसे करता है, स्पीच कैसे करता है, लोगों से बातचीत कैसे करता है, डिलीवर कैसे करता है, ये सब स्टाइल हैं। दीज आर द स्टाइल्स ऑफ वेरियस पीपल। ये तो स्टाइल हो गए, किसी बातचीत कहने का, करने का, लिखने का, ये तो स्टाइल है। लेकिन स्टाइलिस्टिक उससे अबव है। स्टाइलिस्टिक एक लिखी हुई टेक्स्ट को लिंग्विस्टिक जो नॉलेज है वो अप्लाई करके उसको एनालाइज करना, उसको स्टाइलिस्टिक कहते हैं। इसमें लैंग्वेज में प्राइमरी जो प्लेस है, इसमें लैंग्वेज को हासिल है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट इज स्टाइलिस्टिक इज अ मेथड of textual interpretation in which language is having primary place. Hope you got the point. Stylist is sometimes called linguostyle, कभी कभी इसको linguostylistic भी कहते हैं। जर्नल लिंग्विस्टिक की ब्रांच है। क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन इन्वेंट्री ऑफ द स्पेशल लैंग्वेज मीडिया, ontological features secure the desirable effect on the utterance, certain type of the text discourse which due to the choice of arrangement of language mean are distinguished by pragmatic aspect of the communication. आपको शायद मैंने बताया हो डिस्कोर्स का, मैंने आपको बताया था। फौजिया आप बताएं डिस्कोर्स क्या है, व्हाट इज डिस्कोर्स? हमने इसको बड़ा डिटेल स्टडी किया था। जी सर, डिस्कोर्स में ये है कि डिस्कोर्स एनालिसिस में कि अगर फॉर एग्जांपल एक वर्ड है या टेक्सचुअल टेक्स्ट अगर है उधर, तो किस टेक्स्ट अगर दिया हुआ है तो वो टेक्सचुअल सिर्फ मीनिंग नहीं देगा, उसका हिस्टोरिकल उसके साथ बिलोंग, उसकी हिस्ट्री बिलोंग करती है, उसका एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें, तो फिर उसका टेक्सचुअल मीनिंग निकलता है। मैं डिस्कोर्स की जस्ट डेफिनेशन पूछी थी। डिस्कोर्स मीन यूनिट ऑफ टेक्स्ट that is a text that is beyond sentence level is known as discourse. A piece of text that is beyond sentence. When you talk, when you describe something that is beyond sentence, you can say that it is a discourse. जो beyond sentence हो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, डिस्कोर्स कहते हैं। अब डिस्कोर्स क्या हो सकता है? डिस्कोर्स अगर मैं आपके सामने कोई लफ्ज लिखता हूं, मतलब ये बना देता हूं, क्या ये डिस्कोर्स है? इज इट अ डिस्कोर्स? मैं फिर आपके सामने ये झंडा बना देता हूं, क्या ये डिस्कोर्स है? पहले मैंने ये क्रॉस बनाया, क्या ये डिस्कोर्स है? फिर मैंने ये झंडा बना दिया, क्या ये डिस्कोर्स है? इसके साथ इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसका कल्चर है, ये सारी बातें और मिल के तो इसका जो टेक्स्ट है वो फिर उसका मीनिंग देता है, फुल मीनिंग देते हैं। ये डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स अकॉर्डिंग टू मिशेल फूको, ही सेड दैट डिस्कोर्स is having solid school of thought behind it. डिस्कोर्स वो कहलाता है जिसके पीछे उसकी कम्युनिटी खड़ी हो, जिसके ऊपर पीछे स्कूल ऑफ थॉट खड़ा हो, जिसके पीछे उसके मौलवी, उसके प्रीस्ट, उसका रिलीजियस बैकग्राउंड हो और बड़ी ठोस बुनियादों के ऊपर खड़ा हो, वो डिस्कोर्स है। मैंने आपके सामने क्रॉस बनाया, आपके फौरन आपके माइंड में आ गए कई सवाल
कि ये प्रोटेस्टेंट हो सकता है रिलीजन से रिलेटेड, ये कैथोलिक रोमन कैथोलिक से रिलेटेड, ये क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, ये क्रॉस का सिंबल है, एक जीसस क्राइस्ट, बाइबल और प्रीस्ट और पॉप और ये सारे कितने आपके कई किताबें आपके माइंड में आ गई। पीछे पूरी एक फिलॉसफी खड़ी है, पीछे रिलीजियस पीपल खड़े हैं, पीछे पॉलिटिकल लीडर पे रिसर्च खड़ी है, पीछे लॉ खड़े हैं। झंडा पाकिस्तान का बनाऊं तो पीछे इसके पीछे भी आइडियोलॉजी खड़ी है, इसके पीछे लोग खड़े हैं, इसके पीछे स्कॉलर खड़े हैं, इसके पीछे लिखने वाले किताब में शायर खड़े हैं। तो दैट इज डिस्कोर्स। डिस्कोर्स ये होता है, चाहे वो सिंबल की शक्ल में ही क्यों ना हो। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनती है? बियॉन्ड सेंटेंस। तो इससे कई सेंटेंस निकलते हैं। तो ये भी एक क्या है? डिस्कोर्स है। which वो कहता है certain type of text discourse which due to the choice and arrangement of language mean are distinguished by the pragmatic aspect of the communication. Pragmatic aspect, इससे pragmatic aspect भी निकलते हैं। What is stylistic? Stylistic must take into consideration the output act of communications. जब आप स्टाइलिस्टिक को स्टडी करते हैं, स्टाइलिस्टिक के जरिए आप क्या करते हैं कि आउटपुट देख सकते हैं उसकी, कि कम्युनिकेशन हो कहाँ रही है, किस लेवल पे हो रही है, उसका लेवल क्या है, कौन कर रहा है, कौन से वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, किस लेवल के कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ डिक्शन क्या है, लिक्सिकोलॉजी क्या है इस बंदे की, इसकी अरेंजमेंट क्या है सेंटेंस की, किस तरह से बोल रहा है, वो सब कुछ आप जान जाते हैं। आपका इतना नॉलेज होता है एक स्टाइलिस्टिशियन का, वो इन लेवल पे देख लेता है टेक्स्ट को। वो अप्लाई कहाँ से करेगा सारा नॉलेज? क्योंकि वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक का बंदा है ना, लिंग्विस्टिक के सारी डिवाइसेस उसके ऊपर लगाएगा तो असल चीज बाहर आ जाएगी उसकी। बट स्टाइलिस्टिक मस्ट आल्सो इन्वेस्टिगेट द अंटोलॉजिकल। अंटोलॉजिकल के ये बंदे का सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, कहां से बोल रहा है भाई। इन्वेस्टिगेट अंटोलॉजी, उसके बोलने के, उसके इल्म के का इल्म भी। मेरा एक इल्म है तो उस इल्म का भी फिर कोई इल्म है ना, मैंने वो भी किसी सोर्स से तो लिया है। Natural inheritance and the functional peculiarities of mean of communication which may ensure the effect sought. The current definition of style and stylistic is that structure, sequences and pattern. Structure इसका, sequences or patterns which extend or may extend beyond the boundary of individual sentence define style. जब आप स्टाइल की स्टडी करते हैं और स्टाइलिस्टिक को स्टडी करते हैं तो स्टाइल ये आपको हेल्प करता है कि बंदा कहाँ से बोल रहा है और इंडिविजुअल सेंटेंस क्या है, और उसके सीक्वेंस को, उसके पैटर्न को, उसके स्ट्रक्चर को, और जो ऐसी चीज़ें जो बियॉन्ड द इंडिविजुअल सेंटेंस होती हैं वो चीज़ें भी आप समझ लेते हैं। मतलब कुछ बातें हम ऐसी होती हैं स्टाइलिस्टिक के जरिए, ऐसी बातें भी जान सकते हैं जो सेंटेंस में नहीं आती। कोई फिक्रा बोलते हैं हम तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, लेकिन स्टाइलिस्टिक के ज़रिए आप उनको भी जान लेते हैं। कुछ एक बंदा, तीसरा बंदा आ गया, दो बंदे बात कर रहे हैं और तीसरा बंदा आ गया, उसने हाफ कन्वर्सेशन सुनी है, दूसरी आधी तो सुनी नहीं है। तो स्टाइलिस्टिक के ज़रिए यू कैन इवन जज द कन्वर्सेशन यू इवन पर्सन डिडंट अटर, उसने अटर ही नहीं किया, आप तब भी उसके ज़रिए उन डायलॉग, उनके डिवाइसेस के ज़रिए उनको जान सकते हैं। Stylistic is a descriptions and analysis of the variability of the linguistic form in actual language use. मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज की अप्रोच, लिंग्विस्टिक की अप्रोच क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्टिव। एक होती है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच और एक क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव। तो लिंग्विस्टिक की अप्रोच क्या होगी, जैसा सामने उसका स्टाइल होगा उसके अंदर टोन क्या है, उसके अंदर लिक्सिकोलॉजी क्या है, उसके अंदर साउंड कैसी है, उसका नरेशनल लेवल क्या है, फोनोलॉजिकल लेवल क्या है, ग्राफोलॉजिकल लेवल क्या है, एंटोलॉजिकल लेवल क्या है। हर चीज को आप एनालाइज करोगे, लेकिन उसमें जैसे चीज होगी आप उसे वैसे ही डिस्क्राइब करोगे, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक की जो स्टडी है ये डिस्क्रिप्टिव है, नॉट प्रिस्क्रिप्टिव। आप अपनी कोई चीज नहीं डालोगे। क्या कहता है, वेरिएबिलिटी ऑफ द लिंग्विस्टिक फॉर्म ऑफ एक्चुअल लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव।
The concept of style and stylistic variation in language rest on the general assumption that within the language system, the same content can be encoded in more than one linguistic form, operating at linguistic level. तो level कौन कौन से हैं linguistic के? कौन कौन से level पे हम इसको encode करेंगे? More than one linguistic form कौन कौन से? Operating all the linguistic level lexicology पे, syntax level पे, text linguistic के level पे, intonation level पे, ठीक है. Stylistician analyze both the style of the specific text and stylistic variation across the text. एक तो टेक्स्ट के अंदर की ये टेक्स्ट है ना, इसके अंदर को देखेंगे जो इसके अंदर मेंशन है. एक कुछ चीज होती है उसकी बाउंड्री से बाहर भी हमें जाके समझनी पड़ती है. सारी चीजें टेक्स्ट के अंदर तो नहीं होती. मतलब वो अगर डेथ का जिक्र कर रहा है, बार बार डेथ डेथ आ रही, तो डेथ के दूसरी साइड पे क्या खड़ी है? लाइफ. तो ये लाइफ तो फिर हमें टेक्स्ट से जरा बाहर निकल के देखनी पड़ेगी, या हम उसको ऐसे ही समझ जाएंगे? अगर वो डेथ का जिक्र कर रहा है तो उसके अपोजिट भी कोई चीज है, वी हैव टू फाइंड. अगर कोई दिन का जिक्र कर रहा है तो दिन के अपोजिट रात है. तो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द टेक्स्ट समटाइम वी हैव टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द टेक्स्ट इन अ वे टू कॉम्प्रीहेंड मीनिंग. इसी तरह इन लोगों के साथ भी ऐसे होता है कि आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे होते हो ना, किसी बंदे के साथ आप गपशप लगा रहे हैं, आप सिर्फ उसकी फेस वैल्यू को देखते हैं कि आप फेशियल बस जी सामने जो नजर आ रहा है, ठीक है, फेस के ऊपर. लेकिन थोड़ा सा उससे बियॉन्ड जाके भी देखा करो, आपको लगेगा कि वो बेचारा और भी कई चीज़ों के साथ फंसा होता है. हमें बस चीज़ें अपरेंट नज़र आती हैं, लेकिन उसके बैक आउटसाइड जाके हम कभी भी नहीं देखते. कल मैंने भी आपको यही चीज़ बताई थी ना, रूमी क्या कहता है कि इस बाउंड्री से बाहर निकलो जो हमने मीनिंग चढ़ाए हुए हैं अपने ऊपर. यहाँ आप मिलोगे तो पता लगेगा हम सारे एक हैं, सारे एक ही बोट पे बैठे हुए हैं. स्टाइल क्या है जी? स्टाइल इज अ क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज विच कम्युनिकेट प्रिसाइसली इमोशन और थॉट, और सिस्टम ऑफ इमोशंस ऑफ थॉट. स्टाइल क्या है? कहता है स्टाइल इज अ क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज which communicate precisely emotion, thoughts, system of emotion of thought peculiar to the author. जब हम स्टाइल की बात करते हैं, अगर मैं आपके सामने कहूं जॉन डन, तो आपको पता चलेगा जॉन डन ऐसा लिखता है. बेकन की बात करूं तो बेकन का स्टाइल क्या है? पिथी है. रसल के स्टाइल की बात करें तो रसल का स्टाइल क्या है? ल्यूसिड है. एक्सट्रीम होप्स ब्रिंग एक्सट्रीम मिजरी. It's a strange desire to seek power and lose liberty. Children sweeten labor but make the fortune more bitter. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. Study serves delight, ornament, and ability. Again, it's a strange to seek power and lose liberty. Uneasy lies on the head of those who wear its crown. What though the field be lost? All is not lost. Our unconquerable will, the study of revenge and a mortal hate. What else should not be overcome? To reign is a worth ambition, though in hell. Mind in its place can make hell of heaven and heaven of hell. What though the field be lost? Was that the face that launched thousands of the ship and burned the topless tower of Ilium? Sweet Helen, make me immortal with a single kiss. So what is this? These are the style of various people. Christopher Marlowe style, Shakespeare style, and talk about Milton style, Alexander Pope style. Their pretty eyes roll, charms strike the sight, merit win the soul. What is this? These are the style, my dear. And everybody is having different style. और उसकी थॉट, उसकी इमोशन, उसका पिक्यूलर टू स्टाइल, ये एक खास आथर से, एक खास पोएट से, एक खास आथर के साथ मंसूब होता है. जो मेरा अंदाज है किसी और टीचर का नहीं हो सकता. जो मेरा वे ऑफ राइटिंग है किसी का नहीं. जो मेरे सिलेक्टेड डिक्शन है, लिक्सिकल वर्ड हैं, स्पीच है, मेरी अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज हैं, अरेंज करने का, बचाने का, किसी को
टोन में बात करने का अंदाज, I have a different style and somebody will be having different style. You can't match me with somebody. I may be different in various level. यहां तक फौजिया कोई प्रॉब्लम हो स्टाइलिस्टिक? क्लियर सर। समझ आ रही है स्टाइलिस्टिक की? जी सर। Yes. Now let's discuss the true idiosyncrasy of the style is a result of the author's success in compelling language to conform to the mode of experience. Middleton Murray. Style is a contextuality, restricted linguistic variations. हर बंदे के contextuality restricted होता है. बेकन, रसल और ड्रस्कन, जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पॉप, जॉनसन, ड्राइडन, बेन जॉनसन, शेक्सपियर और जेफरी चॉसर, जितने भी आप राइटर ले लें, टॉक अबाउट देयर स्टाइल, दे हैव सर्टन स्टाइल्स. You can't relate with each other. You even can't relate it. टेक्स्ट सामने आएगी, जिसने पढ़ा होगा वो कहेगा यार ये फलां की टेक्स्ट है. ऐसी टेक्स्ट तो वही बनाता है. स्टाइल इज अ सिलेक्शन ऑफ नॉन डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ लैंग्वेज. नॉन ब्लूमफील्ड ने कहा स्टाइल इज सिंपली अ सिनोनिमस विद द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस एंड हेंस अ सुपरफ्लूवस टर्म. स्टाइल इज essentially a citational process, the body of formula, a memory, almost all the cybernetic sense of the word. रोमन जैकॉब्सन्स फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. रोमन जैकॉब्सन पोएटिक फंक्शंस. वो कहता है जी कितने फंक्शंस होते हैं? एक होता है कोनेटिव फंक्शन, एक होता है फेटिक फंक्शंस, एक होता है रिफरेंशियल फंक्शंस, एक क्या होता है इमोटिव फंक्शन, एक होता है मेटालिंगुअल फंक्शंस. मेटा का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में, मेटा लैंग्वेज के बारे में. ठीक है. तो यहाँ पे एक पोएटिक फंक्शन, मैंने एक दिन पहले भी इसके बारे में बताया था. कोनेटिव फंक्शन का क्या मतलब है? कोनेटिव का मतलब एस्पेक्ट ऑफ द मेंटल प्रोसेस ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड एक्शंस आर द चेंजेस इंक्लूडिंग द इंपल्सेस, डिजायर, वायलेशन एंड स्ट्राइविंग. कोनेटिव रिलेटेड टू द इंपल्सेस, डिजायर, वायलेशन, स्ट्राइविंग, ये जो सारी हम करते हैं किसी के एटीट्यूड के अंदर होती हैं चीजें, ये है कोनेटिव. फेटिक क्या है? Relating to the speech used to share feeling, to establish a mood of sociability rather than to communicate information or idea. Referentials, the content carrying the component of message, उसको referential कहते हैं. Emotive, expression of attitude through a message. मैसेज के जरिए एटीट्यूड का पता चल जाता है. कोई बंदा बोले या कोई मैसेज ही करे, पता चल जाता है यार ये इस तरह का एटीट्यूड रखता है. क्यों फौजिया? मैसेज के जरिए अगले के एटीट्यूड का पता चल जाता है. नो हैं? नो सर, नहीं लगता? नहीं सर, समहाउ पता लगता है, लेकिन फिर वही बात कि अगर उसके टेक्सचुअल मीनिंग में जाएं तो उसके साथ कितनी चीजें रिलेट होती हैं, तो वो फिर ओवरऑल तो नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत एटीट्यूड का मैसेज अगर कोई बंदा दे रहा होता है ना, तो वो पता है उसके साथ वो अपनी टोन कुछ बहुत जी, कन्वे, लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग जो है वो नहीं उसके भी एग्जैक्ट हम नहीं, वो किसी हद तक ये जस्ट एक फंक्शन बता रहा है. अच्छा, उसके बाद मेटालिंगुअल. लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब लैंग्वेज, उसको कहते हैं मेटालिंगुअल. जब लैंग्वेज के बारे में ही कुछ बता रही हो उसे कहते हैं मेटालिंगुअल. Poetic project the principle of equivalence from the axis of selections into the axis combinations. Spoken. Varieties of language. Contracted form, phonetics, colloquial words. Colloquial words. आम फहम जो वर्ड्स होते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो बोलते हैं, कॉमनली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, उसे कहते हैं colloquial words. colloquial लैंग्वेज भी होती है. इंटेंसिफाइंग वर्ड्स, इंटरजेक्शंस, वल्गरिज्म बेहुदा किस्म के अल्फाज. फिल अप एम्प्टी वर्ड, ये वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज हैं.
उसके बाद फिल अप द एम्प्टी वर्ड्स, एलिप्सिस, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सिंटैक्टिक के अंदर क्या आती हैं? फिल अप द एम्प्टी वर्ड्स, एलिप्सिस वगैरह। एलिप्सिस का मतलब क्या होता है? कोई चीजों को हम एलिप्स कर देते हैं, निकाल देते हैं बोलते हुए। शॉर्ट सेंटेंसेज विद नो कनेक्टर्स विद एंड अनफिनिश्ड सेंटेंसेज। दो चीज़ों को जैसे अक्सर इंग्लिश पीपल जो हैं वो दो चीज़ों को मिला देते हैं, उसको हज़फ कर देते हैं सेंटर वाली चीज़ को। वुड यू लाइक टू ब्रिंग द डॉग टू द स्टेशन? ब्रिंग द डॉग। अब डॉग नहीं कहते, डॉग। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों को वो प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से बोलते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज है। स्टेटमेंट, वर्ड, ऑर्डर इन अ क्वेश्चन, रेपिटेशन, सब्जेक्ट, मोटिव, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, रिटन। लिंग्विस्टिक ब्रांचेस फील्ड, लेवल ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे देखें, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं अभी डिस्कस करूंगा, ये पहले भी हमने डिस्कस की हुई हैं। देखिएगा यहाँ पे लेवल ऑफ लैंग्वेज, लेवल ऑफ लैंग्वेज, ब्रांचेस ऑफ द लैंग्वेज स्टडी। अगर हम स्टडी कर रहे हैं फौजिया साउंड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, द वर्ड, द वे वर्ड आर प्रोनाउंस, तो ये किसकी स्टडी में आएगा? फोनोलॉजी और फोनेटिक्स। The sound of the spoken language, the way words are pronounced, will be studying under the heading of the phonetics and phonology. When we discussing about pattern of the written language, that will be studying under the heading of graphology. Pattern of written language. Pattern of written language कहाँ study होगा फौजिया? Language shape of language, graphology में। जब द वे द वर्ड कंस्ट्रक्टेड वर्ड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजी में। जब तक हम वर्ड की मार्फीम की मार्फोलॉजिकल लेवल पे स्टडी करते हैं तो एक वर्ड की हद तक रहते हैं। जब वर्ड से आगे निकल जाते हैं तो फिर किस में चले जाते हैं फौजिया? सिंटैक्स। फिर हम लोग जी सिंटैक्स में। यहां मार्फोलॉजी की बात हो रही है, वो फोनोलॉजी और फोनीम और चीज है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मार्फोलॉजी की। तो जब तक हम स्टडी करते रहेंगे किसकी? मार्फोलॉजी की, मार्फीम की, बाउंड मार्फीम की, फ्री मार्फीम की, और उसके बाद स्टडी करेंगे इन्फ्लेक्शनल मार्फीम की। सो वी आर स्टडिंग मार्फोलॉजी, विल बी स्टडिंग प्रीफिक्स, सफिक्स, infix, will be studying about the inflectional morpheme, bound morpheme, free morpheme, lexical word, and lexical word, functional words like that. And we are studying under the heading of morphology. Once we are going beyond the word, then we'll study about syntax, phrase structure, grammar, structure, grammar, and X bar theories. Like these theories will be discussed in the syntax. The way word combine with other word to form phrase and sentences, ये किसमें हम आ जाएंगे फिर? जो हमने कहा था वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, ठीक है। और सेंटेंस होता था, सेंटेंस के अंदर क्या होता था? नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। पहले क्या आता है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिटर्मिनर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर नाउन। और यहाँ पे क्या होता था? कोई इसके साथ भी कोई डिटर्मिनर होता या कोई प्रेपोजिशन होती, और फिर इसके साथ वर्ब होता, और फिर हम ऐसे देखते। तो दैट वाज स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ सिंटैक्स ग्रामर। When we are talking about the word we use, the vocabulary of the language, lexical analysis में आ जाते थे। इसको कहते हैं लिक्सकोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? लिक्सकोलॉजी। जब हम मीनिंग की स्टडी करते हैं, यानी वर्ड वी यूज द वोकैबुलरी ऑफ द लैंग्वेज, तो वो हम लिक्सिकल एनालिसिस में आ जाते थे। ये कहाँ यूज हुई है, कैसे यूज हुई है? लिक्सिकल एनालिसिस। द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड देयर सेंटेंसेस, ये हम कहाँ स्टडी करते थे? सिमेंटिक्स के अंदर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रैग्मेटिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस, प्रैग्मेटिक मीन कॉन्टेक्सुअल एनालिसिस। You and me talking, and we are sitting inside a room, somebody comes and he doubts, who are they? Until unless I speak something and you call me sir, this person doesn't know whether we are sir and having another relation. So it is our
स्पोकन डिस्कोर्स विच विल रिवील आइडेंटिटी। ये स्पोकन डिस्कोर्स होगा जो अपनी आइडेंटिटी बताएगा, आई एम टीचर एंड यू पीपल आर माई स्टूडेंट। सो डिस्कोर्स एनालिसिस का ये फायदा है। 50 बंदों से इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि एक बेवा है, उसके हस्बैंड ने मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। 50 बंदे ये कमेंट देते हैं, कहते हैं यार बहुत जुल्म हुआ यार, उसे मारना चाहिए, उस बंदे को सजा देनी चाहिए। सर अंबर से पूछें कि उस बेवा के साथ बहुत जुल्म हुआ, इनकी क्या ओपिनियन है? अंबर इज नॉट ओवर हियर, otherwise I ask Amber, are you over here? Amber, are you over here? Are you listening to us? फौजिया अंबर तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। She is here. Amber, she is in the class. Amber, you are in the class. Kindly participate. अंबर, एक बेवा औरत है, उसके हस्बैंड ने मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया, क्या सजा मिलनी चाहिए? अंबर कहाँ चली गई है, पूरी बात बताएं हमें। एक बेवा औरत है, उसके हस्बैंड ने मार मार के उसका बहुत बुरा हाल किया है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? मेरी ओपिनियन है उसको 3 महीने की जेल होनी चाहिए। अब आपको बाकी आप क्या कहती हैं अंबर, कैसी सजा देनी चाहिए? She is not over here. प्रेगमेटिक का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्चुअल बात को एनालाइज करना कॉन्टेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। डिस्कोर्स एनालिसिस का आपको पता ही है, द वे वर्ड एंड सेंटेंसेस आर यूज्ड इन एवरीडे सिचुएशन, द मीनिंग ऑफ अ लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमें कौन बताता है? प्रेगमेटिक। Spoken versus written language, phonetic differences, spoken contraction and cant returns. Spoken written language, lexical differences, colloquial words. तो ये जैसे बात बड़ी, ठीक है, get going, kick the bucket, chick, fans, behaves, chap, इस तरह के एक दूसरे को हम कहते रहते हैं ना, बड़ी, फ्रेंड, किड, ये सारे colloquial words हैं। intensified क्या होते हैं? Are sure, like, you would like be dance, proud of your sons, get hell out of here। ये किसी पे जोर दे के जब बात की जाती है ना, tell that man there, he'll welcome around there। So these are the intensified, जैसे hell out of, there, sure, ये हम indeed, ये सारे हम किस लिए यूज करते हैं? ये intensifiers होते हैं, intensifying words। Returns, bookish, educated, above standard words, prosecutors, lawyers, accolades, fan, admirers, ये सारे जो हैं रिटर्न। Spoken written language, lexical difference, intensifying words, I would sure like, you should be dance, proud of your sons, get hell of out of, and tell man there, he's not welcome around here, get the heck out, cribs। Interjection, may God grant you love and peace। इंटरजेक्शन क्या मतलब क्या होता है? जब आप, जैसे मैंने कोई बात की तो आप मुझे से आगे से कहें वाओ, वाओ, वाओ मीन हैरान होना। तो जब कोई किसी को शट अप, तो दिस इज द इंटरजेक्शन काइंड ऑफ। इंटरजेक्शन का एक अपना साइन होता है। इंटरजेक्शन का साइन क्या है? ये वाला। वल्गरिज्म क्या है? गुड, गॉड डैम और शिट, ये वल्गर वर्ड्स हैं। ये अक्सर इंग्लिश पीपल यूज करते हैं, हम लोग तो यूज ही नहीं करते। ये हमारे लिए तो ये गाली है। फिल अप एम्प्टी वर्ड्स, अच्छा ये एम्प्टी वर्ड के लिए बाज़ औक़ात इस्तेमाल होते हैं।
bookish, educated, above standard words. Then you spoken, written, and lexical difference. I think Amber is not over here. Only two or three slides are remaining. I will teach you tomorrow. Stay blessed and have a nice time.